નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે અને મુદ્દાની વાત સાથે હું છું દિવ્યા। મુદ્દાની વાતમાં વાત કરવી છે લોકસભાની ચૂંટણીઓની કે જે હવે બસ આંગણે આવીને ઊભી છે। એક બાજુ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે કે જે ગમે ત્યારે અને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે માર્ચની શરૂઆતમાં પોતાના પહેલા લિસ્ટની જાહેરાત કરી શકે છે અને બીજી બાજુ ઇન્ડિયા અલાયન્સ છે કે જે ખબર નહીં કયા રાજ્યમાં કઈ સ્થિતિમાં છે। ક્યાંક તેનું જોડાણ થઈ રહ્યું છે તો ક્યાંક તે જોડાણ તૂટી રહ્યું છે। ખાસ કરીને અત્યારે સૌથી વધારે જો ચર્ચામાં કોઈ અલાયન્સ હોય ઇન્ડિયા અલાયન્સમાં બે પાર્ટીઓ તો એ આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ છે। પંજાબમાં તો આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસની ગઠબંધન ન થઈ શકી કારણ કે ભગવંત માન કહી ચૂક્યા હતા કે તમામ બેઠકો ઉપર તમામ 13 બેઠકો પર અમે જીતીશું અને 13 બેઠકો પર એકલા હાથે લડશે અને કોંગ્રેસ પર દિલ્હીમાં 7 બેઠકોમાંથી 4 અને 3 ની ફોર્મ્યુલા ઉપર નક્કી થઈ ગયું અને ત્યાં એ ગઠબંધન થયું પણ ખરા અને એટલા માટે એવું લાગતું હતું કે ગુજરાતમાં પણ 26 બેઠકમાંથી 2 બેઠકો આમ આદમી પાર્ટીને કોંગ્રેસ આપી દેશે અને આ ગઠબંધન પણ થઈ જશે નક્કી જેવું માનવામાં આવતું હતું કાલ સુધી। પરંતુ આજ આવતા આવતા કોંગ્રેસના કોઈ નેતા કંઈ કહેવા તૈયાર નથી પરંતુ સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના પરિવારની નારાજગી ઉડીને આંખે આવે છે। તેમના નિવેદનો પણ સામે આવે છે પરંતુ કોંગ્રેસનું કંઈ કહેવું નથી। બીજી બાજુ આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ છે દિગ્ગજ નેતાઓ છે જે કહી રહ્યા છે કે આ ગઠબંધન તો નક્કી જ છે અમે સાથે લડીશું પણ કોંગ્રેસનો મૂળ કંઈક ઓર દેખાય છે કંઈક બીજો દેખાય છે અને તેવામાં સવાલ એ છે કે એક પણ બેઠક લોકસભાની જે 2 ટર્મથી ન તો કોંગ્રેસ જીત્યું છે એ આ 26 બેઠકમાં ગઠબંધનની સાથે આવીને શું ઉખાડી લેશે શું ફાયદો તેમને મળશે કે પછી જો ગઠબંધનમાં નથી આવતું તો પણ શું ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતની હેટ્રિક મારશે અને કોંગ્રેસ આ વખતે શું કોઈ એકાદ બેઠક પણ બચાવી લેશે એ સવાલ છે। એ સવાલ વચ્ચે સવાલ એ પણ છે કે જ્યાં આમ આદમી પાર્ટી કહે છે કે ગઠબંધન થયું છે તો કોંગ્રેસ કહે છે કંઈ જ ખબર નથી અને એટલા જ માટે સવાલ કે આખરે થઈ શું રહ્યું છે રંધાઈ શું રહ્યું છે। ઇન્ડી ગઠબંધનને લઈને ઈસુદાન ગઢવીએ કહ્યું કે ભરૂચ અને ભાવનગર સીટ પર અમારી સહમતિ થઈ ગઈ છે। 8 સીટો અમે ઇન્ડી પાસે માંગી હતી એટલે કે કોંગ્રેસ પાસે પરંતુ 2 આપી છે અત્યાર સુધી અન્ય સીટો પર વાતચીત ચાલે છે। બીજી બાજુ ચેતર વસાવા કહે છે કે ગઠબંધન થાય તેને લઈને કેજરીવાલ પર ભાજપ દબાણ કરે છે। સાથે જ તેમણે કહ્યું છે કે બેઠકોની વહેંચણી મુદ્દે સમજૂતી થઈ ગઈ છે। હવે આ 2 અલગ અલગ વાતો છે। પહેલા તો ઈશુદાન ગઢવી ચેતર વસાવાએ શું કહ્યું એ સાંભળી લઈએ અને ત્યારબાદ ફૈઝલ પટેલે શું કહ્યું હતું એ ચર્ચાનો વિષય છે એ પણ જાણીશું। પહેલા આ બંને નેતાઓએ શું કહ્યું એ સાંભળીએ। 2 સીટો ઉપર આપે જોયું હશે કે ભરૂચ અને ભાવનગર ઉપર સહમતિ સધાઈ રહી છે જ્યારે અન્ય સીટો ઉપર અત્યારે વાતચીત ચાલી રહી છે અને આજે થોડા સમયમાં કદાચ લાસ્ટ મીટિંગમાં એ સીટ શેરિંગની ફોર્મ્યુલા ઉપર ફાઇનલ ઓફ આવી જશે કે કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન ન કરવાને લઈને માન્ય કેજરીવાલજી પર યેનકેન પ્રકારે ભાજપ દ્વારા પ્રેશર નાખવામાં આવે છે। ઈડી દ્વારા સીબીઆઈ દ્વારા ટૂંક સમયમાં એમની ધરપકડ થાય એવી ત્યાં પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થઈ છે। એમના પર પ્રેશર નાખવામાં આવે છે કે તમે જો ગઠબંધન કર્યું તો અમે તમને ધરપકડ કરીશું તમને જેલમાં નાખીશું। ત્યારે અમે આ ભાજપ સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ કે ગઠબંધન અમારું થવાનું છે થઈને જ રહેશે અને આવનાર દિવસોમાં ગઠબંધનને લઈને અમે ગઠબંધનના રહીને અમે લડવાના છે। ત્યારે ભાજપને અમારો ડર છે તો અરવિંદ કેજરીવાલજીને સૂત્રોના હવાલેથી જાણવા મળ્યું છે કે દબાવવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે અમે એમને કહેવા માંગીએ છીએ જો અરવિંદ કેજરીવાલજીને તમે ધરપકડ જ કરવા માંગો છો દબાવવા જ માંગો છો તો કાલે નહીં પણ આજે ધરપકડ કરો પરંતુ એનું પરિણામ આવનાર લોકસભામાં ભાજપને વેઠવું પડશે એ હું ચોક્કસ આજના દિવસે કહેવા માંગુ છું। તો એક બાજુ આમ આદમી પાર્ટી છે જેમના નેતાઓ કહે છે કે આ ગઠબંધન તો થઈને જ રહેશે। બીજી બાજુ કોંગ્રેસના નેતાઓ છે અને ખાસ કરીને સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલનો પરિવાર કે જે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડથી જ નારાજ હોવાની વાત સામે આવી। મુમતાઝ પટેલે પહેલી વખત મીડિયા સમક્ષ આવીને પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી જે ગઠબંધન પર ચર્ચા થઈ રહી હતી તેના પર। તેમણે કહ્યું કે જ્યારે ભરૂચની બેઠક આપવા અંગે સાંભળ્યું તો ખૂબ નારાજગી થઈ। આ સમગ્ર અહેમદ પટેલ પરિવાર નારાજ થયો અને આ પરિવાર એટલે માત્ર અમે 2 સંતાનો જ નહીં પરંતુ એ આખી પાર્ટી આખું સંગઠન કે જે ભરૂચમાં ઊભું થયું છે અને ઊભું કર્યું છે અહેમદ પટેલે કોંગ્રેસ સાથે જ મુમતાઝ પટેલે શું કહ્યું હતું એ પણ સાંભળીએ। जब ये खबर कल आई
तो नाराजगी बहुत हुई थी हमारे पूरे काडर को। लोग कहते हैं अहमद पटेल का परिवार, तो अहमद पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मैं और फैजल हैं, पर अहमद पटेल का परिवार पूरा कांग्रेस का संगठन है, खास करके भरूच में। तो कहीं ना कहीं उनको एक आशा थी कि क्योंकि हमारा परिवार इन्वॉल्व है तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। बट जब ये खबर सुनने में आई तो बहुत नाराज हुए थे लोग और बहुत ही डिमोरलाइज थे। पर આમ આદમી પાર્ટીના ચૈતર વસાવા કહે છે કે બહેનના માર્ગદર્શન હેઠળ લડીશું। એ બહેન કહે છે કે ડેડિયાપાડા સિવાય તો ક્યાંય આપનું અસ્તિત્વ જ નથી। ભરૂચ લોકસભામાં 7 વિધાનસભા બેઠકો છે અને તેમાં માત્ર ચૈતર વસાવાનો દબદબો ડેડિયાપાડામાં છે। બાકીની તમામ 6 વિધાનસભા બેઠકો પર કોંગ્રેસ મજબૂત હોવાની વાત મુમતાઝ પટેલે કરી હતી। શું કહ્યું એ પણ સાંભળીએ। एक तरीके से कांग्रेस ने जो विकास किया है उस सीट पर, और कांग्रेस का जो संगठन है हमारा बेस है, इसी वजह से आम आदमी पार्टी गठबंधन करना चाहती है। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहां पे कार्डर नहीं है, बेस नहीं है। एक असेंबली 7 असेंबली आते हैं भरूच लोकसभा में, जिसमें एक असेंबली से हमारे चेतर भाई वसावा आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो जीते हैं, पर बाकी 6 असेंबली में कोई प्रेजेंस नहीं है। तो गठबंधन इसीलिए करना चाहते हैं खास करके इस सीट पर, क्योंकि उनको कांग्रेस के कार्डर और कांग्रेस के वोटर और कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत है। पर अगर हमारा ही बेस इतना स्ट्रांग है तो ये सीट हमारे हक में आनी चाहिए। આ બધા વચ્ચે મુમતાઝ પટેલનું નિવેદન, ચેતર વસાવાનું નિવેદન અને એનાથી પણ વધારે ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે ફૈઝલ પટેલનું ટ્વીટ। અને આજના માટે આ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પણ બની ગયા છે, કારણ કે કોંગ્રેસ આપ વચ્ચે ભરૂચની બેઠક પર ફસાયેલા પેચ વચ્ચે ફૈઝલ પટેલે ટ્વીટ કર્યું છે। તેમણે કહ્યું છે કે રાહુલ ગાંધીનો આભાર। રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસ અને કાર્યકર્તાઓની વાત સાંભળી, અમારી વાતનું સમર્થન કર્યું। રાહુલજીએ મારું અને અમારા કાર્યકર્તાઓનું સન્માન વધાર્યું છે। આ સાથે જ તેમણે જે કહ્યું, જે સૌથી વધારે ચર્ચામાં રહ્યું, ભરૂચ લોકસભા બેઠક જીતીને તમારા વિશ્વાસ પર ખરો ઉતરીશ। આ વાત તેમણે પોતાના ટ્વીટમાં ગુજરાતીમાં જ લખીને બતાવ્યું છે અને કહ્યું છે કે આ ભરૂચ લોકસભા જીતીને તમારા વિશ્વાસ ઉપર હું ખરો ઉતરીશ। તો શું એવી કોઈ ચર્ચા થઈ છે રાહુલ ગાંધી સાથે, ખાસ ફૈઝલ પટેલની, કે તેઓને ભરૂચ વિધાનસભા બેઠક ઉપરથી પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે? કારણ કે ચર્ચાઓ એવી પણ હતી કે મુમતાઝ પટેલને પણ પસંદ કરવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે। મુમતાઝ પટેલ આ બેઠક પર પહેલા દાવો કરી ચૂક્યા છે। ચર્ચાઓ એવી પણ હતી કે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ રાહુલ ગાંધી સાથે જે ચર્ચાઓ થઈ છે એ બાદ જ જે બંને પાર્ટીઓ છે તે વચ્ચેનું ગઠબંધન। અને મુમતાઝબેન પટેલ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે સીધી વાતચીત કરીશું। मुमताज जी, आपका स्वागत है गुजरात फर्स्ट में। मुमताज जी, फैजल पटेल ने जो कहा है कि इस बैठक पे जीत के दिखाएंगे, तो कौन लड़ने वाला है? फैजल जी लड़ने वाले हैं या फिर आप उतरने वाले हैं? अरे पहले अलायंस और अलायंस की डिसीजन तो हो जाए, ये तो हाईकमांड तय करती है ना। शायद मैं या फैजल भी ना हो, जरूरी थोड़ी है। अच्छा जी नहीं, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं भरूच लोकसभा जीत के आपका विश्वास दिखाऊंगा और आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। तो मतलब फैजल जी अपनी बात कर रहे हैं या फिर किसी और की को भी जिताने के लिए वो तैयार है? पार्टी की बात कर रहे हैं। हम सब जो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए कर रहे हैं और हम पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब राहुल जी से बात हो गई है कि ये बैठक पे कोई भी गठबंधन नहीं होगा? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार जो हम लोगों ने सुना है कि राहुल जी नहीं देने के मूड में है इस सीट को। उन्होंने कहा है कि भरूच सीट रहनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के साथ, पर अभी बातें चल रही हैं, डिसीजन अभी हुआ नहीं है। फाइनल डिसीजन जब आएगा तब हम सबको पता चल जाएगा। नहीं, मुमताज जी, जैसे हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है, जैसे फैजल जी ने अभी लिखा है, मैं थोड़ा सा गुजराती में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उसका ट्वीट गुजराती में है। उसने लिखा है कि राहुल गांधी ने मेरी बात सुनी, मेरे कार्यकर्ताओं का और मेरा सम्मान किया और हमारी बातों को समर्थन किया, इसीलिए मैं उसका आभारी हूँ, ये बात करी है। तो इस बात को हम कैसे ले? इसलिए कि ये गठबंधन नहीं हुआ है, खास करके भरूच बैठक पर जहां पे 6 टर्म से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहां कोई बात बन गई है आपकी? अभी बातें चल रही हैं, फाइनल डिसीजन नहीं आया है। कल भी जल्दबाजी में मीडिया ने चला दिया कि सीट डिक्लेयर हो चुकी है और आज ये चर्चा चल रही है कि सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, पर अभी बातें चालू है टॉप लेवल पे। वक्त लगेगा जब फाइनल सीट शेयरिंग अरेंजमेंट आएगा, ना ही गुजरात का पर दिल्ली का, पंजाब का, गोवा का, हरियाणा का।
तो एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें बता दिया जाएगा। अभी ना ही कांग्रेस पार्टी ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। ओके, जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो हमारे पास चैतर वसावा का भी निवेदन है, ईशुदान का भी निवेदन है, और चैतर वसावा तो ये भी बोल रहे थे कि मुमताज दीदी के समर्थन में ही हम भरूच में लड़ेंगे और जीतेंगे भी सही। हमारा गठबंधन हो ही चुका है इसको, और हम इस गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। और आपकी बात कुछ और दिखा रही है, तो आखिर हो क्या रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है मैम। जी देखिए, जब भी कोई बड़े लेवल पे कोई नेगोशिएशन या डिस्कशन होता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है, जिसमें जो डेजिग्नेटेड पर्सन होता है वो उस चीज की अनाउंसमेंट करते हैं। ना ही मैं ऑफिशियल डेजिग्नेटेड पर्सन हूँ, ना ही चेतर भाई है और ना ही फैसल है। तो हम लोगों के कहने या ना कहने से कोई डिसीजन ना आता है और ना जाता है। जब फाइनल अनाउंसमेंट होगी तो पता चल जाएगा कि अल्टीमेट निर्णय क्या हुआ है सीट शेयरिंग अलायंस के बारे में। ओके मैम, जैसे आपने नाराजगी भी व्यक्त की थी, आपका आज निवेदन भी सामने आया कि जब ये बात हुई तो हम थोड़े नाराज हुए थे, क्योंकि आपका बेस है अहमद पटेल जी, जो बहुत ज्यादा ही बड़े दिग्गज नेता थे, वो भरूच से थे और उसी का ये बेस है। तो जिस तरीके से आपने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन कांग्रेस की कोई और नेता इस बारे में बोलने से क्यों कतरा रहे? क्या उस वजह इस भरूच बैठक के बारे में कांग्रेस के गुजरात के नेताओं के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है? नहीं, किसने बोला ये हमारे सबसे पहले तो क्योंकि भरूच डिस्ट्रिक्ट की बात है तो ना आज नहीं, पिछले 1 महीने पहले से हमारे पूरे संगठन ने एक प्रस्ताव पत्र भेजा था पीसीसी और एआईसीसी में कि हम गठबंधन में ये सीट किसी और पार्टी को देने के खिलाफ है। तो नाराजगी और आपत्ति सबने जताई है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तैयार नहीं है तभी डिस्कशन अभी भी चालू है। अगर कांग्रेस पार्टी तैयार होती तो अभी तक ये सीट शेयरिंग अरेंजमेंट अनाउंस हो चुकी होती। ठीक है मुमताज जी, जैसे हम भरूच बैठक की थोड़ी बात भी करें तो शायद 6 टर्म से भी ज्यादा का समय हो गया है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना पैर एकदम जमा के बैठी है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी इसी मूड से लड़ी तो क्या वो दोनों पक्ष को नहीं ज्यादा परेशान कर पाएगी? आप लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि अगर 6 टर्म से भाजपा के सांसद मनसुख वसावा जी भरूच में हैं, तो 6 टर्म से और उससे पहले 3 टर्म से लोकसभा और 6 टर्म से राज्यसभा से अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए भी सांसद में है, चाहे लोअर हाउस में हो या अपर हाउस में हो। तो कांग्रेस का सांसद भरूच बैठक के 43 वर्ष से है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये कांग्रेस की भी ट्रेडिशनल सीट है। जो विकास आप भरूच में देख रहे हैं पिछले 45 वर्ष से, हर जगह आपको अहमद पटेल का छाप नजर आएगा। जो अहमद पटेल ने कार्य किए हैं और जो भरूच के लिए आवाज उठाई है सांसद में, तो हम इस चीज को भूल नहीं सकते हैं कि सांसद वहां अहमद पटेल भी थे जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। ये हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अहमद पटेल का व्यक्तित्व ही ऐसा था मुमताज जी कि उसको कभी कोई नहीं भूल सकता। ना ही कांग्रेस भूल सकती है, ना ही कोई भी पार्टी के जो अभी सत्ता में हो या कोई भी पार्टी हो, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उसको कोई नहीं भूल सकता है। लेकिन बात यही आ जाती है कि आपने बोला कि मात्र डेडियापाड़ा ही ऐसा विस्तार है जहां पे चैतर वसावा का कोई भी थोड़ा बहुत भी उसका जनादेश है, लेकिन चैतर वसावा तो यही बोल रहे हैं कि ये पूरी भरूच जो लोकसभा बैठक है उस पे उसका अच्छा सा जनादेश है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उसको डिक्लेयर भी कर दिया और इसीलिए वही वहां से लड़ेंगे, ऐसा भी उसका कहना है। तो उस बारे में आपका क्या मानना है? तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ, फिर अलायंस की जरूरत क्या है? अलायंस की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आपको कांग्रेस का कार्डर, कांग्रेस का वोटर बेस, कांग्रेस का संगठन चाहिए, बिकॉज उसके बिना आपका प्रेजेंस डेडियापाड़ा से बाहर नहीं है। बाकी विस्तार में आपको कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ लीजिए कि बाकी 6 असेंबली में और डेडियापाड़ा में भी हमारा कांग्रेस का संगठन है, हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं, हमारे कांग्रेस के वोटर हैं। तो अगर आप ये देखते जाएं तो कांग्रेस का ज्यादा हक बनता है इस सीट पे लड़ना, क्योंकि हमारा गढ़ और हमारा बेस हमेशा से यहाँ रहा है। आम आदमी पार्टी में अभी वो विधायक चुन के आए हैं और आम आदमी पार्टी का ना कार्डर है ना बेस है। पूरे लोकसभा की बात कर रही हूँ तो मैं भरूच की।
जी मुमताज जी, जैसे आप बेस की बात करते हैं तो एक सवाल ऐसा आता है कि लोकसभा के 2 टर्म से एक भी बैठक, एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई है। अगर यही रहा और यही बेस की बात हर सीट पर करने लगे, हर नेता करने लगे और ये कहने लगे कि यहाँ पे हमारा बेस है, तो गठबंधन तो होगा ही नहीं और इंडिया अलायंस का भी, उस पर भी सवाल आ जाएगा। तो आप सिर्फ लोकसभा के बेसिस पे क्यों काउंट कर रहे हैं? चलिए, विधानसभा में हमारे विधायक नहीं आए, पर 2017 में हमारे कांग्रेस प्लस के 4 विधायक थे, हमारे पास कॉर्पोरेटर्स हैं, हमारे पास जिला है, हमारे पास पंचायत रही है। तो ये तो कोई सिर्फ लोकसभा एक माध्यम नहीं होता है ना देखने का कि ये सीट किसकी बनती है। जी पिछले इतने वर्षों में, और अगर आप 2014 से पहले की बात करें तो हमारे पास अगर भरूच थे तो गुजरात में 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, पर भरूच की बैठक की बात करें तो शायद उनको जरूरत भी नहीं पड़ी लोकसभा की, क्योंकि राज्यसभा से अहमद पटेल थे ही सांसद जो कि वहां लेकिन अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों से ही अगर एमएलए कांग्रेस को जाते हैं तो वो भी फायदा कांग्रेस का भी होता है, लोगों का भी होता है। तो इसीलिए लोगों की एक मांग होती है कि भाई अगर लोकसभा में एक भी बैठक कांग्रेस नहीं जीत पा रही है तो फिर 1-2 बैठक देने से क्या ही हो जाएगा। तो हम कौन सा मना कर रहे हैं, पर हम ये बोल रहे हैं कि ऐसी बैठक लीजिए जहां पे आपका प्रेजेंस ज्यादा है। हमने मना थोड़ी किया। और भी सीटें, भरूच सीट एक कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण सीट है, तो इसी सीट पे क्यों? जी मुमताज जी, जैसे आपने भी पहले दावा किया था, ऐसी चर्चाएं भी है कि आपको भी लड़ना था, आपके भाई को भी लड़ना था, तो अगर किसी को पसंद किया जाए, अगर आपकी फैमिली से, तो आप क्या चाहते हो, किसको पसंद किया जाए? मैंने डे 1 से, आप मेरे किसी भी इंटरव्यू को देख लीजिए, किसी भी चैनल पे, किसी भी माध्यम से, कहीं सोशल मीडिया पे, मैंने डे 1 से कहा है कि वो पार्टी का निर्णय है और पार्टी अगर चाहेगी और मुझे कहेगी तो मैं लड़ूंगी। पार्टी नहीं चाहेगी कि मैं ना लड़ूं तो मैं इसमें कोई रिबेलियन या कोई आपत्ति नहीं जताने वाली हूँ। इस वक्त हमारा मकसद एक ही है कि कांग्रेस पार्टी भरूच बैठक से लड़नी चाहिए। मेरे और मेरे जैसे लाखों जो वोटर्स हैं उनको एक ऑप्शन रहना चाहिए कि हमारे पास पंजे का सिंबल हो कि हम उसको दबा के वोट कर सके कांग्रेस पार्टी के लिए। मुमताज जी, जैसे आपने अभी बोला कि जो भी पार्टी कहेगी वो हम करेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब हमने पहला सवाल आपको पूछा, आपने बोला था कि फैजल पटेल ने जो बात ट्वीट पे कही है, लेकिन अभी मोदी मंडल से इतनी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अगर कंफर्मेशन आ जाती है और भरूच बैठक आम आदमी पार्टी को दी जाती है तो फिर मुमताज पटेल और फैजल पटेल का स्टैंड क्या होगा? आप मेरे ट्वीट पढ़ लीजिए। अगर आप सबके ट्वीट पढ़ रहे हैं तो आप मेरा ट्वीट पढ़िए कि मैंने ये कहा है और हर इंटरव्यू में कहा है कि नाराजगी और आपत्ति जरूर रही है कि ये बैठक नहीं जानी चाहिए आम आदमी पार्टी को, पर अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट में जो भी ऊपर के लेवल पे तय किया जाएगा और पार्टी तय करेगी और पार्टी आदेश देगी, हम उसका पूरा सम्मान करेंगे। मुमताज जी, अगर आम आदमी पार्टी से चेतर वसावा भरूच से लड़ते हैं और इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आपका अलायंस बन जाता है, तो क्या चेतर वसावा ने जो पहले कहा था कि मुमताज दीदी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो क्या ऐसा ही होगा? जी देखिए, काम करेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। जी मुमताज जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। તો હતા મુમતાજબેન પટેલ કે જેમના દ્વારા એ તો સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે ભરૂચ બેઠક કોંગ્રેસ પાસે જ રહે તેવી જ તેમની પૂરેપૂરી ઈચ્છા છે। રાહુલ ગાંધી અમારી વાત સાંભળી અને અમારી વાતનું સમર્થન કર્યું છે। ફૈઝલ પટેલ દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે, જો કે મુમતાજ પટેલે એવું કહ્યું છે કે એ વાત થઈ છે, અમને એવું કન્ફર્મેશન નથી મળ્યું અને એટલા જ માટે સવાલ ત્યાં ને ત્યાં ઊભો છે કે આખરે કોઈ પણ ગઠબંધન થવાનું છે કે કેમ, ભરૂચ પર થવાનું છે કે કેમ, ભરૂચ પર કોંગ્રેસ લડવાની છે કે કેમ, આમ આદમી પાર્ટી લડવાની છે કે કેમ અને સાથે લડવાની છે કે કેમ, એ સવાલ ત્યાંનો ત્યાં જ ઊભો છે। કોંગ્રેસના અન્ય નેતા કંઈ પણ કહેવા તૈયાર નથી। આમ આદમી પાર્ટી કહી રહ્યું છે કે ગઠબંધન થવાનું જ છે, ગઠબંધનમાં જ લડવાનું છે, પરંતુ સવાલ ઘણા બધા છે।